afternoon. I am Jyoti from MTTM third semester. Welcome our speaker Dr. Longte Dolat Rao M and workshop participant. I request Dr. Sonam Mahmood to felicitate our speaker with khatas and memento. Now I want to introduce our speaker to the participant. Dr. Longte Dolat Rao is a faculty member of Indian Culinary Institute, Tirupati. Dr. Longte is expert on gastronomical tourism and his PhD is based on same. He is postgraduate in Master of Tourism Management from Madurai Kamaraj University and postgraduate diploma in PGD in Food Safety and Quality Management from Indira Gandhi National Open University, New Delhi, and graduate Bachelor of Science, Hospitality and Tourism Studies from Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nasik. Diploma in 3-year course, HSC Diploma in Hotel Management and Catering Technology from Maharashtra State Institute of Hotel Management and Catering Technology, Pune. Dr. Longte work experience in Faculty Member Food and Beverage Service, Indian Culinary Institute, Directorate of Vocational Education and Training, Government of Maharashtra, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad, Indian Railway Catering and Tourism Corporation, New Delhi, Fitch Maritime Service, India Private Limited, Mumbai, P&O Cruises, UK, the Cricket Club of India Limited, Mumbai. Dr. Longte is 19-year experience in industrial teaching and academic and research. Dr. Longte won Best Research Paper Award at National Conference on Contemporary Research and Practice in Tourism and Hospitality organized by Department of Tourism Studies, Pondicherry University in 2017. He published 21 research papers and 23 presented at national and international level. And Dr. Longte edited 3 books. Now I request Dr. Sonam Mahmood for his opening remarks. Respected Dr. Longte Dolat Rao, key speaker and faculty member of Indian Culinary Institute, Tirupati, participants of the training program, Dr. Rajinder and students, मैं आप सबका स्वागत यहाँ पे करती हूँ और मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी क्योंकि हम यहाँ पे आज बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं। तो आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हॉस्पिटैलिटी एटिट्यूड के ऊपर है। तो हॉस्पिटैलिटी एटिट्यूड मतलब क्या होता है? जब कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनके साथ हमें कैसा पोलाइट बिहेवियर करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ, ये हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज आते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं। तो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को पता होना चाहिए कि उनके साथ किस रिस्पेक्ट से, किस डिग्निटी से, किस केयर के साथ हमें उनको सर्व करना है, उनको ट्रीट करना है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा अवसर होगा आप लोगों के लिए ये जानने के लिए कि आपको कैसे बिहेव करना है जब ऐसे हाई ऑफिशियल्स आते हैं या कोई भी गेस्ट आते हैं। इंडिया में हमारा ये सिस्टम चलता है, हमारी ये धारणा है, हम ये सोचते हैं कि अतिथि देवो भव, मतलब हम अतिथि को अपना भगवान समझते हैं। तो वैसे ही तो जब हमारे अतिथि, जब हमारे गेस्ट यहाँ पे आएंगे तो हमें उनका वैसे ही देख रेख और ख्याल रखना है जैसे हम अपने भगवान का रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें, जो भी सर बोले वो नोट करें और इसका जितना हो सके आप इस्तेमाल करें इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी में भी। सो इसी के साथ मैं अपना एड्रेस समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। Sir, and also thanks to management of University Honorable Vice Chancellor who gave me this opportunity to talk in front of you
Thanks for my lovely introduction. First time detailed introduction. One of the students she have done it. It's very good. How many of you are comfortable with English? Just raise your hand. How many of you are comfortable with हिंदी में कितने लोगों को समझ में आता है? सबको ये फोल्डर कौन सा है? मैं कर देता हूँ। तो मुझे ये मौका मिला कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का और मुझे जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, आप लोगों के साथ शेयर करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये हॉस्पिटैलिटी एटिकेट में हमें क्या, हमारे खुद में क्या बदलाव करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो सर्विस पार्ट, मेजरली बहुत सारे, मैंने जो सर से सुना, बहुत सारे स्टाफ जो है वो मल्टीटास्किंग है। आपको जो भी काम ऑफिस में रहता है या वीसी ऑफिस में रहता है, अदर ऑफिसेस में रहता है, कुछ भी हो काम, उस हिसाब से आपको मे बी वाटर सर्विस होगा, university impression to the visitor, and that to any visitor who is visiting vice chancellor के साथ जो भी विजिट करते हैं उनके साथ, वो बहुत ही वीवीआईपी गेस्ट होते हैं और उनके लिए फिर उसी हिसाब से हमने एक प्लान बनाया। पहले ये इसको मैंने 2 भागों में शिफ्ट किया है। पहले हम एक प्रेजेंटेशन देखेंगे, 2 प्रेजेंटेशन देखेंगे, एक में भी 15-20 मिनट्स का, अनदर 20 मिनट्स का, और बाद में हम लोग प्रैक्टिकल सेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके पास क्रॉकरी कटलरी रहेगा उसको कैसे सही तरीके से टेबल के ऊपर लगाया जाए, कैसे टेक्निकली सर्व किया जाए। बहुत प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे देखा, लास्ट 3-4 दिन मैं लद्दाख में हूँ और बहुत जरा गेस्ट हाउसेस भी एक्सपीरियंस किए। तो पैशन तो बहुत है लोगों के अंदर काम करने का, मगर ट्रेनिंग की कमी है। जो नॉलेज प्रैक्टिस से आया है वही है उनके पास, मगर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिल जाए तो डेफिनेटली इसका स्तर कुछ ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो ये पहला प्रेजेंटेशन जो बनाया है वो हाइजीन के ऊपर है। कोरोना जस्ट फिनिश हो गया है, हम लोग ओपन हो गए हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ऑनलाइन क्लासेस से बाहर आ गए। ठीक है, और कोरोना ने हमें क्या सिखाया? कोरोना ने हमें सिखाया कि हाथ कैसे धोते हैं, क्यों हाथ धोना चाहिए और क्यों हाथ साफ रखने चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियन हाथ से खाना खाते हैं। जो वेस्टर्न पब्लिक है वो तो फोक और नाइफ से खाते हैं, तो उनके फोक नाइफ क्लीन होते हैं। क्लीन और हाइजीन में क्या फर्क है? हम बोलते हैं कि क्लीन है और हाइजीन है। कभी इसके ऊपर सोचा है? अभी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट होगा यूनिवर्सिटी में, है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट? नहीं है, ठीक है, ना होने दो। तो भी हमारे आजू बाजू में 99.99% माइक्रोब्स है। हम कितने परसेंट है? 0.01% है। जो भी एनिमल्स है, जो भी अपना पॉपुलेशन है, नाउ इंडिया इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जो भी हम लोग है वो बहुत कम है, उससे ज्यादा माइक्रोब्स है। ओके, एनीथिंग हैविंग अ टॉलरेबल लोड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग सहन कर सकते हैं। जैसा हमने कुछ बाहर खाया और पेट में दर्द होने लगा, और कुछ हम लोग बाहर गए, यहाँ का पानी तो अच्छा है लद्दाख का, दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, फिर कुछ हो गया। ओके, तो उसमें क्या होता है कि ये जो कुछ हमें हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं वो अनहाइजीन की वजह से होते हैं, जिसमें हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, परेशान करने वाले बैक्टीरिया हमें ये करते हैं, वो आ जाते हैं। तो इसका लोड कम हो तभी ये हाइजीनिक कहा जाता है। ठीक है, तो क्लीन, ये टेबल का सरफेस क्लीन है। मैं इस प्रेजेंटेशन को पूरे जैसा है वैसा नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे पिक्टोरियल थिंग्स जो पिक्चर के फॉर्मेट में है आपको पसंद आएगी। बाकी सब ज्यादा जहां पर जरूरी है वो एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हैंड हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल बिहेवियर, जो तो यहाँ पे लगा है, मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा क्योंकि काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंजरीज को मेडिकल पॉलिसी, ये होटल्स में जो ऑर्गेनाइज्ड
एस्टैब्लिशमेंट्स है, होटल है, केटरिंग है, एयरलाइन केटरिंग है, रेलवे केटरिंग है, इनमें मेडिकल पॉलिसी होती है। मे भी यूनिवर्सिटी के पास भी मेडिकल पॉलिसी होगी कि साल में सभी एम्प्लॉयज का एक बार मेडिकल चेकअप करवाएं। ओके, ग्लव्स कब तक ग्लव्स यूज किए जा सकते हैं, कब करने नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये मैंडेटरी है बोल के एक ही ग्लव्स पूरा दिन भर लेके घूमते हैं, ठीक है। वो ग्लव्स, वो सुपरवाइजर दिखाई दिया, तुरंत ग्लव्स पहन लिया और दिखाया मैं तो ग्लव्स में काम कर रहा हूँ। ओके, तो विजिटर पॉलिसी स्पेशली फूड हैंडलिंग एरिया में, यदि कोई हम क्या बोलते, पैंट्री वगैरह एरिया होगा आपका कहीं पर विशेष आपके ऑफिस के बाजू में, तो एक एरिया रहता है, वहां पे बोलते हैं कि विजिटर यहाँ पे नहीं आना है, हम काम कर रहे हैं। अंदर बहुत गंदा पड़ा रहता है, वो बात अलग है, मगर तो भी बोलते हैं कि तो विजिटर पॉलिसी एनी फूड, बड़ा फूड ऑर्गेनाइजेशन में विजिटर कोई अंदर आ रहा है तो उसको कैसे लेके आए, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं। और ट्रेनिंग और सुपरविजन, आज क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि आज के ट्रेनिंग के बाद आप सब लोग चेंज हो जाओगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल चेंज नहीं हो। मगर इसमें क्या है ना, पूरे ट्रेनिंग में एक चीज भी आपको अच्छी लगी और आप में कुछ बदलाव हो गया, वो सक्सेस है आज के ट्रेनिंग का, ठीक है। और इसके लिए यूनिवर्सिटी में रेगुलरली ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि आप में जरूर बदलाव आएगा, ठीक है। जितने पैशनेट लोग हैं, फोकस टू वर्क है, डेफिनेटली उनमें चेंज आएगा। जो हम में भी नहीं था, अभी फूड की तरफ देखते हैं तो हमें वो ऑटोमेटिकली बाय बर्थ हमें तो कुछ नहीं था, हम लोग तो ग्लास भर के पानी भी नहीं लेते थे। जब कोर्स किया और 20 साल इंडस्ट्री में डाल दिया तो अभी तो ऑटोमेटिकली आ जाता है अपने आप अंदर से। ओके, तो देखते हैं हैंड हाइजीन कैसे होता है। क्या एक्सपेक्टेड है कि कोई भी आप खाने को ये कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तो आप रेगुलरली फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करो। ओके, ये एक्सपेक्टेड है। अभी आप लोगों को जनरली, आप इसको पर सीरियसली मत लेना, आप कितने बार हैंड वॉश करते हो? कोई भी एक वॉलंटियर कोई दिन में कितने बार हैंड वॉश करते हैं? अभी तो वही कोरोना में तो हमने बताया कि हैंड वॉश करना है, कितने बार करते हैं? 3-4 बार। सही, इन्होंने सही जवाब दिया है कि 3-4 बार करते हैं, ठीक है। और कोई? स्पेशली जो फूड हैंडलर्स है, उन्होंने जब भी हम फूड को हैंडल करते हैं उससे पहले और उसके बाद में वॉशरूम, वो सब है आगे है, मैं दिखाऊंगा आपको। एंड इसके लिए जो भी मैनेजमेंट है, सुपरविजन है, उनको नोटिसेस लगाने हैं कि जैसा आपका पैंट्री है वहां पे कोई नोटिस रहेगा कि हाथ धोना जरूरी है, ऐसा कोई नोटिस होगा तो जरूर आप 10 लोगों में से 2 लोग तो हाथ धोएंगे। नोटिस है, उधर लिखा है तो कम से कम हाथ धोए। एडिक्वेट सुपरविजन, और ऐसे में क्या होता है ना कि सडनली विशेष आप बाहर आ जाते हैं तो देखते हो, अरे हाथ नहीं धोया आपने, हमने तो नोटिस लगाया, तो उस चक्कर में कोई सुपरविजन हो ना तो ऑटोमेटिकली हमारा हैंड वॉशिंग हो जाता है। मगर इससे पहले ये मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है, जो ये यहाँ पे लाइन लिखा है कि हैंड वॉश फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे हाथ धो बोलो, नहीं धो सकते है ना, क्या है इधर हाथ धोने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो होना क्या चाहिए, एक सिंक होना चाहिए, उसमें ल्यूको वार्म वाटर होना चाहिए, सोप होना चाहिए। ये साइंटिफिक डेफिनेशन है, मैं इसमें पूरी तरीके से जाऊंगा नहीं। एक कम से कम सिंक हो और कोई सोप हो, ठीक है। मगर साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, एडिक्वेट लिक्विड सोप, सिंगल यूज पेपर टॉवल, सैनिटाइजर, सेंसर ऑपरेटेड टैब और ऑपरेशन द फुट ऑपरेटेड बिन, जैसा पैर से खोलो डब्बा खुल जाएगा, उसमें वो टॉवल डालो। ओके, ऐसा होना चाहिए, ये साइंटिफिक बोलता है। मगर हमें क्या है कि जैसा बेस है वैसा बदलना चाहिए, जहां पे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रनिंग टैप वाटर हो और कुछ सोप हो, तभी हम बोल सकते हैं कि हैंड वॉश करो। तो मे भी आपने जो बोला कि 4 बार करते हैं, मे भी आप अपना खुद का ये लेके इंटरेस्ट लेके आप वहां पे जाते होंगी, कहीं आपका काम छोड़ के जाती होंगी, हैंड वॉश करती होंगी, ठीक है।
ओके, एंटरिंग फूड रूम, एनी फूड रूम, कौन सा भी आपका जहां पर भी आप खाने को हैंडल करते हो, ऐसे कोई भी फूड रूम को आप एंटर कर रहे हो या वहां पे एंट्री किया, टॉयलेट, वॉशरूम यूज करते हैं, आफ्टर दैट सभी को हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर जगह पर, ठीक है। और चाहे तो अपना पर्सनल सैनिटाइजर रखो, हैंड वॉश करने के बाद बहुत अच्छा है। चेंजिंग ड्रेसिंग, ये यहाँ पे उतना यूनिफॉर्म नहीं है, तो जनरली क्या होता है, फूड इस्टेब्लिशमेंट में यूनिफॉर्म होता है, तो बाहर से हम जब आते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म के ऊपर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज लेके आते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, तो उसके बाद वहाँ का होटल का नया यूनिफॉर्म डालते हैं, तो उसके बाद हाथ धोना जरूरी है। कोई इल कस्टमर को या इल फ्रेंड को हमने ये कर दिया, टच कर दिया, तभी भी आप उसके बाद कोई भी, अभी ये तो बहुत कॉमन है, कोई अपोजिट जेंडर में हमने देखा तो दोनों ऐसे हाथ लगा देते हैं, हाँ मेरे बात सही है ना। तो इसके लिए ये बाल पे हाथ कितने बार जाते हैं, बहुत बार जाते हैं, तो वो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। नाखून में हम ये बैठे हैं, कुछ काम नहीं है तो उसमें भी, हाँ, और फेस पे भी बहुत सारा टाइम, जैसे ऐसे बैठे हैं कैसे, मगर बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे इस पे है और वो हाथ पे आ जाते हैं, और उसके बाद हाथ धोना जरूरी है। इसी के लिए हमारे जो खाना हैंडल करने से पहले हाथ को धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजों से बैक्टीरिया आ जाते हैं। स्मोकिंग, ईटिंग, कफिंग, हाउ मेनी ऑफ यू स्मोक? वो कोई नहीं बोल रहे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ईटिंग, डेफिनेटली खाना खाने के बाद हम हाथ धोते हैं, और खाना खाने के बाद आपको किसी को सर्व करना है तो जरूर साबुन से धोइए, ठीक है। आप जनरली होटल्स में भी ऐसा होता है ना कि खाना जो वेटर्स रहते हैं, जो भी सर्विस किचन स्टाफ होता है, वो पहले खा लेते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है। जो लंच टाइम शुरू होता है वो 12 बजे से 3 बजे तक, फिर 4 बजे खाना खाना, तो उससे पहले वो क्या करते हैं, 12 बजे खाना खाते, तो उनका खाना होने के बाद जरूर वो हाथ धो के सर्विस एरिया में आ जाते हैं। कफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग नोज, यानी जब भी ये, इसको कहीं पे हम लोग रोक नहीं सकते हैं। कफ आ रहा है रोक नहीं सकते, स्नीज आ रहा है रोक नहीं सकते, नाक धोना है, उसके सिवा हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, तो ये करने के बाद हाथ धोना जरूरी है। क्लीनिंग, कुछ भी साफ सफाई करते हैं